Last time we discussed about the syntax of a complete block in PL PGSQL, and we also discussed the block structure of the PL PGSQL. So now the structure of the हेलो हाँ सर, आपकी आवाज एकदम अटक अटक के आ रही है। आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है सर एकदम। हाँ, नेट नहीं है बराबर यहाँ पे आज। ठीक है। हेलो, आ रही क्या आवाज? आप भी आइए थोड़ी नॉर्मल, पहले पूरी अटक अटक के आ रही है। नहीं, वो अभी नेट का कनेक्शन आज मोबाइल से लगाया मैंने, क्योंकि ये बंद है ना थोड़ा कॉलेज। नहीं ओके, आवाज सर, आवाज गई सर आपकी। आ रही क्या आवाज अभी? आपकी स्क्रीन भी फ्रीज होती है। हाँ सर, आज आवाज आ रही ना? आवाज भी। So this is the control structure, format of control structure. If then else, if then else if. This is just like your general if statement. If condition then statements, if condition then statement, else alternative statements, and if condition then statement, else if condition then statement, else statement. And so one example we are going to discuss about the if else statement. This is the example of if else statement. So like that, every script or every program, every procedure that we are going to write in PostgreSQL must contain or start do $. I explained in the last lecture the meaning of $. Some procedures, some libraries, some functions which are built in are available in that $. Procedure, and that's why we have to include do $. Or one more command we have to introduce while writing the PostgreSQL script. We will discuss that command in some later queries, but for executing this program that I am discussing with you, which contains the if then else statement, because we are not writing only the procedures, we are writing the procedures with tables. Means what? The tables or the SQL statements that we discussed in last chapters, we are also introducing that statements and SQL statements also while writing the PostgreSQL. So similarly, what we are doing here, we are writing the one script of PostgreSQL. So declare is there because we are declaring what? We are declaring some variables here. What is the variable? See, the new variable is available here, that is percentage row type and percentage type. These are two new types of variables available in PostgreSQL. These variables can support any data type. Percentage row type and percentage type, these two variables can support for any data type. It is not only belongs to number, character, date, or like that, but it can support to any data type. Yesterday I told you that the new types of variables we will discuss when we are using that variables in the scripts. What is percentage row type and what is percentage type?
See, in the last page, this is the attribute. You may say these are the attribute, these are the variable types. And what is percentage type and percentage row type? You can declare variables with the same data type or structure to another database item or table field. What is percentage type? Suppose you are select student, select roll number. What is roll number there? अगर आपने select roll number किया तो roll number क्या हो गया बोलो? What is roll number? Integer data type. नहीं क्या है roll number क्या है? अभी select column name हो गया ना वो roll number. हाँ. Select roll number from student. तो roll number क्या हो गया? कॉलम का नाम हो गया. ओके? यस सर. तो अभी ये जो रोल नंबर है ये एसक्यूएल का रोल नंबर कॉलम नेम है. एसक्यूएल में हमने पढ़ा है सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, तो दैट इज द एसक्यूएल. अगर हमें रोल नंबर अभी प्रोसेस में यूज करना है सपोज, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसेस रोल नंबर. दिस इज द कंडीशन व्हेन वी राइट स्क्रिप्ट्स. वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल ऑफ रोल नंबर फर्स्ट. जैसे रोल नंबर एक कॉलम का नाम है एसक्यूएल में, वैसे वो रोल नंबर हमें अगर पोस्टग्रे में यूज करनी है पीएल में, तो उसे हमें परसेंटेज टाइप से ट्रांसफर करनी पड़ेगी. यू हैव टू चेंज द कॉलम नेम टू वेरिएबल. चेंज द नेम ऑफ कॉलम नेम टू वेरिएबल. तो रोल नंबर को अगर हमें प्रोसीजर में यूज करना है तो उसे परसेंटेज टाइप से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए परसेंटेज टाइप. देखो कैसे लिखा गया है परसेंटेज टाइप. देखो एग्जांपल है एम्प्लॉय आईडी, ये आपका कॉलम का नाम है. एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम का नाम है और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी ये जो कॉलम हमने लिया है उसका ये वेरिएबल है. सो व्हाट इज दिस? सपोज दैट दिस इज दैट आई एम राइटिंग, दिस इज वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी that we have to use it in the procedural language, and that variable is the data of that variable comes from the employee ID, which is the column name of employee. And whenever you transfer this employee ID from employee, you must have to use percentage type attribute. Then and then it can be transferred, otherwise no. Means what? The characteristics, the properties of employee ID and V employee ID are exactly same. And now we can use this V employee ID where in the procedure anywhere. You cannot use employee ID in the procedure. If you use employee ID in the procedure, it will return error. And that's why we are creating the variable which are dependent on the employee ID. And that's why percentage type is used. Second type is there, that is percentage row type. What is that percentage row type? Suppose हमें अगर पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है, उसका डेटा एक रो का डेटा सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा डेटा, उसमें रोल नंबर आएगा, उसमें नाम आएगा, उसमें क्लास आएगा. All the variables, all the columns are included in that row type. तो हमें अगर पूरी रो की रो अगर लेनी है तो हमें you have to use percentage row type आपको यूज करना पड़ेगा. एक कॉलम के लिए परसेंटेज टाइप का है और पूरे के पूरे रो के लिए क्या है, परसेंटेज रो टाइप आपको देखना पड़ेगा. देखो तो ये परसेंटेज रो टाइप है, ये पूरा रो का रो सिलेक्ट करेगा और रो को आपको PostgreSQL में प्रोसेस कर सकते हो. सो दीज आर द टू डेटा टाइप्स. सो इन दिस फैशन यू कैन डिक्लेयर, दिस इज एग्जांपल, यू कैन डिक्लेयर दिस वन रो डेटा टाइप एंड एम्प्लॉय आईडी, दैट इज परसेंटेज टाइप. So that's why now today I am discussing that because this is in the example. So like that. देखो ये है selected atom row type like that. What is this? This is what. So देखो ये ऐसा है. So we have declared two variables in the program. Selected item is the variable. तो कौन से वेरिएबल है? जो एटम की रो में है. देखो ये जो राइट साइड में मैंने बताया है ये टेबल आपको, ये स्क्रिप्ट के लिए वी हैव टू क्रिएट दिस टेबल, वी हैव टू एंटर दिस रिकॉर्ड्स, देन एंड देन वी कैन कंटिन्यू द प्रैक्टिकल, अदरवाइज नो. आपको क्या करना है, ये स्क्रिप्ट रन करने के पहले क्या करना है, आपको
एटम का टेबल तैयार करना है, उसमें रिकॉर्ड्स भरने हैं, बाद में ये क्वेरी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अब क्वेरी मैं लिख रहा हूं, देखो इसमें मैंने एक रो टाइप लिखा है, यानी सपोज मैंने एक कौन सा भी रिकॉर्ड इसमें का हम डिस्प्ले करेंगे 1 2 3 4, कौन सा भी आइटम का रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करेंगे पूरा का पूरा रिकॉर्ड, तो वो आ गएगा आपका सिलेक्टेड आइटम में। अगर हमें एक आइटम सिलेक्ट करनी है, सिर्फ एक आइटम, यानी सपोज आइटम नंबर 2 सिलेक्ट करनी है हमें, तो परसेंटेज टाइप आएगा। देखो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन रो टाइप एंड टाइप। पूरी रो चाहिए आपको तो रो टाइप लो, एक आइटम आपको सर्च करनी है, सिलेक्ट करनी है तो टाइप लो। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ले रहे हैं, हम एक रो भी ले रहे हैं और एक आइटम भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका नंबर है 2। तो हमने दो वेरिएबल बना के रखे हैं, एक सिलेक्टेड आइटम है और एक इनपुट आइटम आईडी है, दो वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट करके रखे हैं। तो वी आर राइटिंग द क्वेरी हियर, बिगिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम इनटू सिलेक्टेड आइटम। अभी क्या हो गया, सिलेक्ट स्टार मींस व्हाट, पूरे रोज चले गए उसमें, किसमें, सिलेक्टेड आइटम में चले गए पूरे रोज। और आइटम आईडी क्या है, जो हम कीबोर्ड से देंगे वो आइटम आईडी है, जो हम कीबोर्ड से देंगे वो आइटम आईडी है, ध्यान में रखो। अगर हम 2 दे रहे हैं कीबोर्ड से तो 2 आइटम सिलेक्ट करेगा। अब अगर हम कांस्टेंट दे रहे हैं 2, देखो स्क्रिप्ट ने 2 हमने कांस्टेंट दे दिया है, ये ऊपर देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर के आइटम की जो रिकॉर्ड है हमें डिस्प्ले करनी है, विच इज द रिकॉर्ड, कौन सा आइटम है वो 2 नंबर का, उसको हमें डिस्प्ले करनी है। तो अगर वो इफ नॉट फाउंड, ये स्टेटमेंट है देखो, इफ नॉट फाउंड देन, अगर जो आइटम हमने दिया वो इसमें नहीं है, टेबल में नहीं है, तो रोज रेज करेगा नोटिस। रेज नोटिस से मैसेज डिस्प्ले होती है, मैंने बताया आपको कल। जैसे आप प्रिंट से प्रिंट कर सकते हो, सी आउट से डिस्प्ले कर सकते हो, सी में प्रिंट एप से डिस्प्ले कर सकते हो, system.out.in से आप जावा में डिस्प्ले कर सकते हो। वैसे आपको अगर पोस्टग्रे में कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो आपको यूज करना पड़ेगा रेज नोटिस। बाद में जो भी टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अगर हमें आइटम नहीं मिला जो हम देख रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं 2 नंबर का आइटम, देखो हमारे सामने टेबल भी है, 2 नंबर का आइटम भी है। अगर नहीं मिला तो वो देगा आपको कि आइटम कुड नॉट फाउंड। एल्स अगर मिला आइटम तो क्या करेगा, वो आइटम का नाम दे देगा आपको। 2 नंबर का आइटम है, उसका नाम है बॉक्स, को नाम दे देगा आपका बॉक्स आइटम है 2 नंबर का। ये वेरी सिंपल क्वेरी देखो इसमें मैंने लिख दी है, देखो लाइक वेरी सिंपल स्क्रिप्ट इज देयर। ये जो है इफ स्टेटमेंट करके मैंने यूज की है। तो मैं आपको बताने के पहले आइटम नाम का टेबल हमें चाहिए, बनाना चाहिए, उसमें हमें उसने रिकॉर्ड भरने चाहिए, बाद में ये रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, देखो मैं बताता आपको, बाद में रन करके बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करने दो मुझे। देखो आउटपुट आ गया है इसका, क्योंकि हमने 2 नंबर का आइटम दिया है, तो 2 नंबर का आइटम बॉक्स है। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो ये आउटपुट भी मैंने डिस्प्ले करके रखा है। ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, ये सेकंड टेबल के कॉलम में देखो, ये आउटपुट आपको आ गया, आइटम नंबर इज बॉक्स। देखो ये आ गया, 2 नंबर का आइटम बॉक्स है। अगर नहीं आइटम मिलता था तो मैसेज आपको मिल जाता था कि दिस आइटम इज कुड नॉट फाउंड इन द लिस्ट। मैं क्वेरी आपको बताऊंगा करके, उसके पहले हम कुछ कंप्लीट कर देंगे। देखो बाद में जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है फॉर लूप। एवरीबडी नोज अबाउट द फॉर लूप। आपको फॉर लूप के बारे में मालूम है, फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं। But the same process, if you want to continue several times, then we can use for loop. अगर हमें एक ही प्रोसेस so many times कंटिन्यू करनी है तो हम उसमें लूप यूज करते हैं। तो इसमें फॉर लूप है, इसमें व्हाइल लूप है, जो भी लूप आपको यूज करनी है वो लूप आप यूज कर सकते हो, लाइक दैट। द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज गिवन, लेबल है आपका, लेबल दे सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल पार्ट। फॉर लूप काउंटर, फॉर लूप काउंटर इज द वेरिएबल। अगर हमें रिवर्स चाहिए तो रिवर्स प्रिंट होगी। रेंज आपको देनी है, फ्रॉम टू की रेंज देनी है आपको, स्टेप्स देने हैं आपको, लूप लिखना है आपको, स्टेटमेंट्स जो भी आपको एग्जीक्यूट करने हैं मल्टीपल टाइम्स, कितने टाइम्स आप यूज करेंगे, बाद में एंड लूप और वो लेबल लूप का। ये लेबल, व्हाई लेबल इज देयर,
because it is not compulsory that you must have to use only one for loop in the particular procedure. So many for loops we can write in the same procedure, and that's why you can label every for loop. अगर आपको कम से कम 8-10 फॉर लूप यूज करने हैं पोस्टग्रे में, तो आप हर एक फॉर लूप को लेबल देंगे, ये फॉर लूप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम, दूसरा फॉर लूप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो यू कैन गिव द लेबल्स फॉर दैट पर्टिकुलर लूप प्रोसीजर। तो वो लेबल आप दे सकते हैं इसमें। तो इसका सिंटैक्स देखो, आपको जो दिखाई देगा यहाँ पे सिंपल है। फॉर आई इज द वेरिएबल, फॉर लूप काउंटर जो दिखा हमने, फॉर आई इज द वेरिएबल इन 1.5 लूप। तो क्या करेगा ये 1 से 5 तक क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा जो भी आप बोल रहे हैं, 1 से 5 तक वो एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा वो। तो हमने क्या किया है, वो रेज नोटिस में लिख दिया है, ये आई इज परसेंटेज आई, आई वेरिएबल डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 टाइम्स ही डिस्प्ले होगा। जो भी प्रोसेस है वो आपको 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, देखो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। वैसे रिवर्स हमने किया उसको, फॉर आई इन रिवर्स 5.1 लूप, तो क्या करेगा 5 4 3 2 1 इस तरह से वो बिहेव करेगा फॉर लूप। इज वेरी सिंपल। ये आपको फॉर लूप में ऐसा काम कर सकते हो आप फॉर लूप। सो बाद में आपको देखो, बाद में आपको देखा एक एग्जांपल मैंने दिया है, देखो एक मैंने टेबल बनाई है फिल्म नाम की, इसमें एक्चुअली फिल्म नाम की टेबल है नहीं, एक एग्जांपल है ये, फिल्म नाम की टेबल बनाई है मैंने, उसमें मैंने टाइटल लेंथ लिया हुआ है, उसका टाइटल लिया है फिल्म का, उसकी लेंथ ली हुई है, लेंथ है ना, हाउ मेनी टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर फिल्म, 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, 4.5 घंटे की है, उसका टाइम दिया हुआ है उसमें। मैंने वो टेबल बनाया है उसमें फिल्म में, और वो फिल्म में मैंने एक टाइटल डाले है और उसकी लेंथ डाली है। तो ये फॉर लूप में मैंने डाल दिया है, फॉर एफ इन सिलेक्ट टाइटल कॉमा लेंथ फ्रॉम लेंथ ऑर्डर बाय लेंथ और डिस्क्रिप्शन लिमिट इज 10। लिमिट इज 10 मींस व्हाट, जो फिल्म की लिमिट है, जो मैंने 100 फिल्म्स रखे हुए हैं एक टेबल में, उससे मुझे 10 ही चाहिए, टॉप 10 ही चाहिए मुझे। तो वो ऑर्डर बाय से मैं क्या करूंगा, लेंथ के ऑर्डर बाय से मैं टॉप 10 यानी जिसकी लेंथ ज्यादा है या कम है, जो भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से आ गई 10 फिल्म आ जाएंगे। कौन से 10 फिल्म है, जिसकी लेंथ कम है वो 10 फिल्म आ जाएंगी, इसके लिए लिमिट 10 आ जाएंगी। लूप में वो क्या आ जाएगा, बाद में लूप डाला है मैंने, वो लूप में क्या करेगा, वो रेज नोटिस, वो मिनट फिल्म का टाइटल देगा और लेंथ देगा। कौन सी ऐसी 10 फिल्में हैं जो मैंने सिलेक्ट की है, उसका नाम वगैरह वो देगा, वो लूप में डिस्प्ले करते जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये है फॉर लूप जो मैंने बताया। Simultaneously we are completing while loop, again the same purpose of while loop is there, but the difference is there, you used to do the jobs repeatedly within the block of statement until the condition mentioned becomes false। ये लूप जब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं हो जाती, अगर फॉल्स हो गई तो लूप ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड। इन दिस टाइप ऑफ लूप द कंडीशन मेंशन विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिफोर द स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। जो इसमें कंडीशन दी हुई है वो एग्जीक्यूट होती है, ब्लॉक के पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है ये लूप में। फॉर लूप में वैसे नहीं होता है, फॉर लूप में डायरेक्टली इट कैन स्टार्ट। तो उसका भी सेम है, इसको भी आप लेबल दे सकते हैं, व्हाइल कंडीशन लूप स्टेटमेंट एंड लूप, जो भी स्टेटमेंट्स आपको चाहिए वो स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं। इसका भी एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज दिस इज द एग्जांपल। एक फंक्शन हमने क्रिएट की है, क्रिएट फंक्शन, हेलो वर्ल्ड नाम की फंक्शन हमने क्रिएट की है, उसमें रिटर्न टेक्स्ट हमें मिल रहा है और आउटपुट में वो टेक्स्ट चला जाएगा। बाद में बिगिन में हमने वो सिलेक्ट हेलो वर्ल्ड इनटू आउटपुट ऐसे दिया हुआ है, तो आपको हेलो वर्ल्ड 1 रो सिलेक्ट करेगा। तो ये जो है ये दोनों लूप्स हमने यूज किए हैं। तो सी सपोज इफ वी go through the PostgreSQL if statement and PostgreSQL for loop like that, suppose I try to this, अगर आइटम नहीं है इसमें तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देख लेंगे हम पहले आइटम है क्या नहीं, इसमें आइटम नाम का टेबल है क्या नहीं, अगर प्रैक्टिकली अगर उसको मैंने तैयार किया है तो नो प्रॉब्लम।
देखो एग्जीक्यूट करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि हाउ इट कैन बिहेव। आपको इसके लिए जो एसक्यूएल है वो एसक्यूएल आपको उसके लिए आना जरूरी है। एसक्यूएल कैसे होता है, अभी एसक्यूएल हमें पूरा एसक्यूएल उसमें यूज करना नहीं है। एसक्यूएल के कुछ स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ यूज करने हैं इसमें। जैसे हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में कॉलम का नाम नहीं ले सकते हम। कॉलम के इक्विवेलेंट का वेरिएबल हमें तैयार करना पड़ेगा, मैंने ये बोला आपको। और ये वेरिएबल ही आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। कॉलम का नाम हमें कभी भी प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, ध्यान में रखो एक बार। अगर आपको उसको यूज करनी है तो आपको उसको परसेंटेज टाइप से या परसेंटेज रो टाइप से ट्रांसफर करनी पड़ेगी। पहले हम सर्च करेंगे कि जो आइटम है क्या इसमें, क्योंकि हमने आइटम टेबल तैयार किया हुआ है। तो आइटम है क्या इसमें देखेंगे, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो हमें आइटम नाम का टेबल तैयार करना पड़ेगा। नहीं है आइटम, ओके। एक मिनट है। नहीं है आइटम नाम का टेबल। तो देखो ये क्वेरी जो है हमारी, इसमें हमें आइटम नाम का टेबल तैयार करना पड़ेगा। ये जो टेबल दिया हुआ है, आइटम आईडी, आइटम नेम, रेट और परचेज डेट, ये हमें तैयार करना पड़ेगा। देखो अभी इसमें आइटम नहीं है, चाहिए था आइटम, क्यों नहीं है? एक मिनट में बताता आपको। तैयार करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा हमें। क्रिएट टेबल आइटम, देखो इसमें है क्या क्या देखा है हमने इसमें। क्रिएट टेबल आइटम, सॉरी, इसमें देखो क्या क्या है। आइटम आईडी, आइटम नेम, रेट, परचेज डेट। आइटम आईडी, आइटम नेम, रेट, परचेज डेट। आइटम आईडी इसको हम इंटीजर बोलेंगे। आइटम नेम इसे हम टेक्स्ट बोलेंगे। और रेट और परचेज डेट। रेट इसे भी हम इंटीजर बोलेंगे, और परचेज डेट। परचेज डेट, एक मिनट, वेरिएबल बराबर लिया है, पीयूआर डेट है, पीयूआर डेट, पीयूआर डेट। ये है, हमने आइटम्स ले लिए हैं। तो ये आइटम टेबल, सॉरी, क्रिएट टेबल आइटम, क्लिक करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ऊपर कमांड है एक। ये टेबल तैयार हो गया, देखो ये टेबल वाला तैयार हो गया। इसमें हमें इंसर्ट करनी है रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू व्हाट, इंसर्ट इनटू आइटम हम करेंगे, इंसर्ट इनटू आइटम वैल्यूज। इंट पे होगा सर, इंट पे होगा सर, इंट पे हो गया बोला, इंटू नहीं हुआ। तैयार हो गया आइटम, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आइटम डालेंगे हम, जो भी है अभी 1 2 3 4 आइटम। रेट, आइटम का नाम हम डालेंगे पेन, आइटम का रेट हम डालेंगे, सपोज आइटम का रेट
हम डालेंगे 200 रुपए। और डेट अभी कौन से फॉर्मेट में दी हुई थी हमने डेट, याद है आपको डेट का फॉर्मेट? इसके डेट का फॉर्मेट है, देखो ये ऐसा था इसका डेट का फॉर्मेट, नियर अबाउट ऐसे था शायद 2019 डैश डैश कुछ तो भी 10 ऐसे शायद ऐसे था, शायद मुझे लग रहा है ऐसे था शायद। देखो देखते हैं रन करके एक रिकॉर्ड, देखो नहीं इनटू है, सॉरी। अच्छा दूसरी चीज है, वैल्यूज इंसर्ट नहीं होगी ना, क्योंकि ऊपर अपन ने जो क्रिएट टेबल किया है। नहीं हो गया ना, देखो हो गई, एक रिकॉर्ड की है मैंने इंसर्ट, डेट के लिए देख रहा था मैं, 2 नंबर आइटम डालेंगे, गई ना रिकॉर्ड है यहाँ पे, देखो 2, इसमें हम बोलेंगे बॉक्स, इसमें हम बोलेंगे बॉक्स, उसका रेट बोलेंगे 300, और डेट वही की वही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट का हमें, ठीक है नहीं। डेट के लिए मैं चेक कर रहा था वहां पे डेट कैसी है, तो 1 मिनट में फटाक से इसको रन करूंगा, टाइम देख हो रहा है। 2 नंबर का आइटम भी यहाँ पे चला गया, 3 नंबर का आइटम हम डालेंगे यहाँ पे, वहां पे हम बोलेंगे यहाँ पे अगर हम कुछ पैड खरीदी करनी है हमें, सॉरी बॉक्स, हमें बॉक्स ले लिया हमने, पेन, आपको क्या क्या लगता है एग्जाम के लिए बॉक्स है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लगता है, कैलकुलेटर वो सपोज है फंक्शनल है तो वो 4000 रुपीज का है, लाइक दैट। 3 आइटम डालेंगे हम, देखो 3 आइटम डालेंगे, ओके ओके 3 आइटम हमने डाल दिए हैं। अभी क्या करेंगे, जो 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 पीजी एसक्यूएल है मेरा, जो एसक्यूएल है वहां पे, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा, देखो है कि नहीं। अभी वो आइटम है, सब है, 2 नंबर का आइटम भी हमने डाला है, और हम एक एक आइटम जो ले रहे हैं, ये तो रन किया हुआ क्वेरी है मेरा, देखो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूंगा, एंड तक देखते हैं, 2 नंबर का आइटम दिया हुआ है मैंने, एग्जीक्यूट करूंगा मैं, देखो इसमें दे दिया है, इसके मैसेज बॉक्स में आंसर आ गया, देखो द आइटम नेम इज बॉक्स, 2 नंबर का क्या नाम है, बॉक्स है, देखो दिया था मैंने, ओके दिया कि नहीं दिया था? हेलो, यस सर। उत्तर मिळतंय तुम्हाला, 2 नंबर, आता मी बदलवतो, समजा इथे मी 4 नंबरचा आयटम टाकतो, जो नाहीच टाकलेला आहे मी, बघा यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 4 है, जो नहीं है 4 नहीं है, तो उसमें एरर देनी चाहिए जो भी हमने लिखी है, अगर आइटम नॉट फाउंड तो क्या देगा वो, देखो आइटम नॉट फाउंड, तो आपको मिलेगा, देखो देखो इसमें दे रहा हो द आइटम 4 कुड नॉट बी फाउंड, है कि नहीं, जो हमने दिया है द आइटम 4 कुड नॉट बी फाउंड, जो एरर हमने दी है तो वही एरर उसने रेस की है, देखो 4 नहीं है तो 4 नहीं है बताया। तो इफ यू ऑब्जर्व दैट वेरी केयरफुली एट होम, मैं आपके सामने बोर्ड नहीं है कि मैं बता सकूं, आपके चेहरे पे देख के समझ सकता हूं, लेकिन अभी मैं तो समझ नहीं रहा हूं आपको क्या समझ में आ रहा है। तो क्लास में कैसे होता है कि आपके चेहरे देख के समझ में आ जाता है कि आपको ये समझ गया है। तो देखो ये एक रो के लिए, हाँ यस, कुछ क्वेश्चन है आपकी? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे अपने आइटम नंबर से, हाँ बोलो ना, बोलो सर जैसे अपने आइटम नंबर से क्या था, आउटपुट आ गया, तो जैसे आपने ऊपर जब डेटाबेस क्रिएट किया है तो उसमें वहाँ पे हाँ आइटम नेम कैपिटल लिखा है और नीचे वाले में कैपिटल स्मॉल में लिखा है, तो इसमें आउटपुट आएगा क्या? हाँ आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे, नहीं 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 नहीं, आप अगर स्मॉल केस में लिखा है आपने और सर्च कैपिटल में कर रहे हैं आप, तो नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि दिस इज केस सेंसिटिव टेक्स्ट है। जो भी टेक्स्ट आपने भरा है, जैसे भरा है टेक्स्ट आपने डेटाबेस में, वैसे ही टेक्स्ट आपको सर्च करने को मिलेगी, ओके। हाँ क्योंकि देखो अपन ने जब अपन ने ऊपर क्रिएट टेबल किया ना, तो अपन ने आइटम आई कैपिटल लिया है, आइटम अंडरस्कोर नेम लिया है, और नीचे जब अपन सर्च करें तो अपन ने सादा डाला है आइटम अंडरस्कोर नेम। कहाँ है आइटम नेम? आइटम आईडी है, आइटम नेम वो नहीं देखो है। सर, कहाँ है आइटम नेम? और नीचे एल्स कंडीशन में। नहीं 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 नहीं, आइटम नहीं, वो तो कमेंट है यार, सिंगल कोट में है ना, देखो ना आप क्या है, वो सिंगल कोट है ना, आइटम आप तो कुछ भी लिख सकते हैं ना सिंगल कोट में। आपके ध्यान में आया क्या? देखो मैं ये भी हटा दूंगा आइटम, लास्ट में ये जो ये बोल रही ना आप, देखो ये वाला, ये तो ये क्या है मालूम है क्या आपको, ये जो है ना,
ये आपका कमेंट है और ये ऐसे चलता ना, आप स्मॉल लो या कैपिटल लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है ना ये आप बोल रहे हो, इसको कोई ऐसे, इसको ये केस सेंसिटिव नहीं है ना, मैंने पहले ही बोला आपको। नहीं सर, ये नहीं बोल रहा मैं। लास्ट में देखो, लास्ट में उसी की लाइन में आपने लास्ट में देखो क्या लिखा है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम डॉट आइटम अंडरस्कोर नेम। हाँ, नहीं नहीं सिलेक्टेड, ये वाला इंटू, ये वाला इंटू, ये ना, हाँ ये सर, सिलेक्ट जैसे स्टार स्मॉल फ्रॉम में है। आइटम इंटू सिलेक्टेड आइटम, है कि नहीं? कौन सा, ये वाला क्या, ये वाला मेरा कर्सर है वहां पे। कौन सा बोल रहे हैं आप, बोलो मुझे। हेलो, हेलो, कौन सा, बोलो सर। ये लाइन क्या, ये वाली लाइन, ये देखो ये जो है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये देखो आवाज बहुत कट। देखो ये क्या, ये देखो ये ना,